Good evening, everyone. This session is especially for GS paper 3 right now. And in GS paper 3, what about the role of technical part? Even in your prelims and mains, both examination. This is your syllabus, and I will start according to your syllabus, guys. Okay. So you can see on this screen. Okay, this is the entire syllabus. Those you can see on board, guys. And just in 5 minutes, I will brief this syllabus. Those you can see here, and I will follow accordingly. Those are mentioned here. Okay. So what about your syllabus? You can see here regarding the science and technology part. This is the one side that you can see as a preliminary syllabus. Okay, this is a preliminary syllabus. Okay, this is a preliminary syllabus, and here you can see in this main syllabus. Actually, in GS paper 3, what about the segment which are okay? In GS paper 3, what about the portions required regarding this prelims and mains examination from science and technology, that you can see here in this portion, and actually I will follow accordingly this everything. Okay, in the prelims examination, here you can see the science and technology part, like basic principle of science, important of Indian scientist research institution, their achievements, satellite and space technology. Later on, see the environment and biodiversity, ecological system, nutrition, food and nutrients, human body, agriculture, product technology, food processing, health policy and program, and pollution, natural disaster and management. So these are the entire part, especially the first part in your prelims syllabus, though officially mentioned. Okay, second you come here, guys, into the second part. Those officially mentioned in your prelims syllabus, you just see here, and then I will tell you what I will start today. Okay, it is very, very important. So at least at the end of this lecture, you will be clear that your entire portion is going to over. So this is the reason syllabus discussion. And you remember, guys, every day I will open your entire syllabus, and I want that entire syllabus you people mug up it, guys, and accordingly you develop your entire notes. Even somehow in this discussion part, we people will help you, and some notes that those I have prepared, you people will get it slowly and gradually. Okay, the second part that even in your prelims syllabus is mentioned, this is information and communication technology. This is the information and communication technology. Here many dimensions, those your syllabus mentioned, like electronics, information and communication technology as a general discussion, robotics, artificial intelligence, cyber security, e-governance, internet and social networking side, and plus e-commerce. So these are the even syllabus, those are given in your prelims examination. One thing, your prelims syllabus, those MPPSC has given you, I can tell you, guys, this is a very smart syllabus. Okay, this is a very smart syllabus. Why it is very smart syllabus? They just mention the name of chapter. Okay, what inside the chapter they could not mention, and this is the main issue in this preparation, guys. As you see here, they mention information and communication technology. Okay, artificial intelligence, robotics they mention. Similarly, cyber security they mention, but what under the cyber security they did not mention, and this is the main problem in your preparations. Even another point you see here, guys. You see here in this case. In the first part, those syllabus I have shown you. In this first part of syllabus, you just see, you will understand. Here, science and technology, they mention as a space technology only. Okay, even satellite and space technology, they mention as a separate topic, but you should be clear, guys, satellite already comes under what? Space technology. Okay, and under space technology, there have many dimensions. Okay, they have many dimensions. So this is the reason I am telling you, your prelims syllabus, at least it is like it
that you people go through entire mains preparations, and that will simultaneously connect with the prelims examination. Only few portion that you will separate for the prelims specially. Neither guys, around 70% portions with your mains examination, with your mains preparations, it will already complete here for the prelims examination. I hope you are getting my point. Again, I will repeat, this entire mains preparation, if you people will do, here 70% syllabus of your prelims paper will already compile. Okay, in that way, my entire discussion will be here. So what I planned, those you people will follow in my entire discussions. Better we people follow the main syllabus. Okay, better we people follow main syllabus, and with main syllabus where the topics are connecting for the prelims paper, simultaneously I will discuss with you, and at last the prelims portion left, okay, that I will take as a separate topic in this entire discussion. So this will be the total strategy. That strategy I will follow with you guys. Again I repeat, how I will finish this entire GS paper 3 units according to your prelims examination. In the prelims examination, this syllabus you people have seen, those officially your examiner has given you, commission has given you, and here in this mains examination you can see guys, total 10 units in your mains examination in GS paper 3, and those segments in your examinations regarding from science and technology part, this is mentioned here. So in your mains paper, unit number 6, those I will explain with you. This is the communicable disease and their preventions. Okay, national vaccination program, fine. Just like you can see about the Indradhanush, mission Indradhanush. Later on you people will see about many other missions I will discuss with you, a part of Ayushman Bharat, National Nutrition Mission. Okay, Indradhanush IMI Mission 2.0 that recently in the news with current updations I am telling you. Okay everyone. Later on about the Ayush Ministry, and Ayush Ministry got so much popular guys because of many reasons. Okay, and today in the respect of Corona, still you people know Ayush Ministry is very popular. How we people can enhance our immunization, according to Ayush Ministry has given a lot of statement. Okay, you people can go through that, so you will get it very easily. Okay, so traditional methods, traditional vaccines, Ayurvedic system that India has started guys, everything is still in the news, very popular. Why Indians are suffering less effect because of Corona and all? So there is a reason, because of our traditional medicine guys, and here Ayush Ministry help you to provide you this type of information. Next, health related important welfare schemes of central and state government. So what about the central government, I will discuss with you, but you must have to go through MPPSC based. What about the state government brought many health issues, okay, schemes in your state, fine. So this is the first unit that I will cover here, fine. Just 2-3 minutes more you give me guys, and then I will start your topic. This is the next unit that I will follow. In this entire 10 units I am telling you what are here, you see, this is the next unit, unit number 7. In unit number 7, what is given here? Effects of development on human life, limitations of indigenous technology. Okay, this is the topic, those I will start today. Okay, so effects of development on human life means how science and technology affect to the human life. So there are two ways the science and technology affect to the human life. Either it can go through positive or it can go through negative. So positive and negative, in these both two way guys, science and technology create the effect. Okay, so effects of development of human life. So how on human life science and technology create the effects, and here you people always remember plus effect and minus effect both. Okay, so this discussion I will do. And second side guys, what about the limitations of indigenous technology? Okay, so there is two portion here in this unit. So this will be my today's discussion, but just 2-3 minutes I will just brief your syllabus. Okay, because today onwards I will start unit number 7. Okay, fine. Later on, what about the history of remote sensing satellite and about the list of remote sensing in India? Okay, next one, about many institutions names are given there. Many institutions names are given there, and even those institutions names are given there. Here these institutions are especially related to energy and space technology.
So 90% institution and organization, those your examiner demand, these are actually from energy and space technology. Okay, and even one more part you can tell here, that just like defense also. 1-2 example of institution, organization, even your syllabus mentioned from defense technology. Okay, from defense technology. As I can give you example like ISRO, space, Raja Ramanna Center for Atomic Energy, Satish Dhawan Space Center, space, Defense Research and Development Organization, defense, Bhabha Atomic Research Center, nuclear energy, Tata Institute of Fundamental Research, miscellaneous type, but it also involved into the energy sector, even also it involved in environment sector. Okay, similarly guys, I'm just telling you guys, those entire list of organization and institutions, those in your syllabus are given, only entire these, all the around 20 names are given there, around 18 to 20 names, and all the names are actually from these 3 disciplines. Either it is from energy, it is from space, or it is from defense. It means when I will cover, okay, this all the chapter, already this portion will over, but it will be not like that. I will take a separate discussion on this entire organization in one day. Okay, another one guys, another one, you just see here. Okay, see some more unit here, you can see. Next, unit number 9. Unit number 9 is totally given actually from environment. Okay, this unit is entirely given from environment. Okay, one more unit is here, that is unit number 8, that is related to energy sector. Okay, here this topic is what? Definition, scope, dimension of environment. Okay, in the context of environment. Okay, this is the what about the environment pollution, what about the environmental changes, what about environmental ethics. In these way guys, this is the syllabus, environmental educations. Okay, your syllabus are defined. Okay, your syllabus are defined. You see, this is your syllabus, environmental educations. Okay, you see, this is your syllabus, those are given here. So these are your syllabus, those officially, okay, in your examination it is mentioned. Which problem hai? Okay, these are your syllabus, those officially mentioned. Okay everyone. Now actually guys, I am going to start with you. This is the first unit. Okay, this is the unit number 7. Okay, unit number 7, that discussion I will do here. So which unit I will explain you guys, you just listen here. Okay, in the prelims, okay, in prelims 2 part 1 that you people know very well, science and technology in your syllabus, and second one is the information and communication technology. This is the portion that I covered in your entire prelims syllabus. Okay, what about the conclusion of entire discussion you see, and your mains paper, that unit I will explain with you. This is the 6th unit, this is the 7th unit, this is the 8th unit, and this is the 9th unit. So by mistake is the 1 unit is not here. 6th unit is what? That is the health and disease based. I just to brief out, this is the health and disease based. 7th unit is the technical part, where you will see the especially space technology. Okay, and a part of this space technology here you can see nanotechnology, even robotics. Okay, about the name of institutions are there, and one more about the name of scientist. Okay, name of scientist. So these all are the in unit number 7. In unit number 8, this is energy, and unit number 9, this is environment. And these are the unit guys. One thing that I will tell you about unit number 7. Unit number 7 is the lengthiest one among all these 4 units. Those I specify here in this class, especially for your main syllabus. But again I repeat, 70% of your syllabus, okay, 70% of your prelim syllabus will already cover with this entire discussion of
Unit number 6, 7, 8 and 9, those are given in your syllabus. I'm very sure guys, now everybody have a syllabus, and that will help you a lot to understand what actually boundary, what about the requirement of your examinations. Okay, and again I repeat guys, every day I will open your syllabus. Okay guys, and it is must, because I want that you people refer this entire syllabus with me. कुछ है इसमें प्रॉब्लम, क्या है पता नहीं. Okay, now come here guys, those discussion I am going to do today here, that is unit number 7. Okay, and now I am going to start my lecture with given your syllabus. So what will be the today's discussion? You people give a heading: effects of development on human life, limitations of indigenous technology. Again I repeat, effects of development on human life and limitations of indigenous technology. This entire discussion I will do here guys. Okay, fine. So what will be the dimension, those I will cover here. Okay, topic you people know very well. Okay, how science and technology affect human life. Okay, how technology affects development of human life. Actually, to come on that entire topic, okay, first of all, few basic information that you should know in this beginning. Okay, what about the basic information? Listen guys, suppose actually those subject I am going to take here, that is science and technology. Okay, that is science and technology. This is science and technology, and you should be clear in the beginning what about the meaning of science and technology. Okay, you should be clear here guys. Okay, bacha, what about the other entire units? That discussion Apu sir will tell you later on. You first listen those portion I am going to finish right now. There are a lot of the units, don't worry, every units we will compile and finish it slowly and gradually. Firstly, those unit I made it target to finish it, that I have shown you. Slowly gradually every unit will cover. Okay, fine. And that is the reason I have shown you in the syllabus now, that this is the portion those I am going to cover you right now. I hope you understood. Okay, there are many faculties, they will come and take your classes slowly and gradually. Fine. Okay. Okay, fine. Science and technology, you just listen what about the meaning of it. Science, always remember, it's a natural. Science is a natural, but technology always is human made. But technology always human made. Okay, so science exists in nature. So oral, science exists in nature. Okay, in the beginning I want to say something about science and technology. Okay, just as an introductory part, you should be very clear. Science exists in nature, it is natural, but technology is a human made. It's totally generated by human being. Okay, it means it's a anthropogenic. One more time I can tell you, human made are anthropogenic. So human made are anthropogenic. Okay. Why science and even technologies anthropogenic are human made, that I will tell you, but you just listen guys. Even I can give you about the example of science, those exist in the nature. You just tell me guys, you people are receiving sunlight or not? You guys are receiving sunlight or not? Of course. You people know very well that natural light is coming towards you. Sunlight means is a star light. I hope you people know very well, sun is a kind of star. The sun is an example of star. The one point. Second point, I will tell you guys, what about the gravity? Gravity. If you fall down, okay, if you guys will fall down, okay, so what you will see guys, if you will fall down, मतलब अगर आप छत से नीचे कूदो तो आप ज़मीन पर गिरते हो, तो यहाँ पर भी साइंस है, एंड दिस साइंस इज कॉल्ड ग्रेविटी. ओके, ये आपने नहीं बनाया, ये नेचर में एग्जिस्ट करता है. इट्स अ साइंस, इट्स अ ग्रेविटी. यू सी अनदर एग्जाम्पल.
gravitational force. I'm just giving you some example, guys, that will help you to understand the science and technology at least. Okay, those subject I'm going to start in the beginning, you should be clear what about the meaning of all this terminology, and then entire technology portion I will discuss with you. Okay, gravitational force. So one thing, sunlight, that is a natural light, those are coming from the sun. It is what? It is a nature. It exists in the nature. It's a science. Fine. Gravity, if apple will fall down from a tree, guys, it will come drop to the earth. Why? It is a gravity. It's a natural. It exists in the nature. Fine. Even gravitational force. Gravitational force is also a kind of natural force. It also exists in the nature. Do you know, guys? In between two heavenly bodies. Heavenly bodies means जो बहुत बड़े बड़े भार वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं. Okay, between two heavenly bodies, in between those attractional forces comes. This attractional force is called as a gravitational force. So दो बड़े बड़े बॉडी के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शनल फोर्स होता है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. आई विल गिव यू एग्जांपल. ओके, थ्रू एग्जांपल्स. ओके, through examples you will get very clear. What about example? You just see, gravitational force is a kind of attractional force, है ना, खींचने वाला बल है, दूसरे को अपनी तरफ खींचता है. Just you see example of gravitational force. The one आप ले लो, एक अर्थ है और दूसरा ले लो that is of moon. Earth and moon have a very large size of body, है ना, there are very large size of celestial bodies, और in between these two large size of celestial bodies have a some attractional force, और उसकी वजह से देखो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं. ओके, एंड दिस इज एग्जिस्ट इन द नेचर. ओके, अर्थ इज गोइंग टू बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट मून. मून इज गोइंग टू अट्रैक्ट अर्थ. अब दोनों इतने हैवी हैं, बोथ आर नॉट मूविंग एनीवेयर. लेकिन आप जानते हो जो अर्थ पर पानी होता है वो हल्का होता है. अर्थ इज हैवी बट अर्थ पर मौजूद जो वाटर होता है इट इज लाइट, तो वो उठता और गिरता है. एंड दैट्स व्हाई हैव अ इफेक्ट ऑफ टाइड्स. जो आप टाइड्स बोलते हो ना, वो टाइड्स इज द रिजल्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. अब इट इज अ नेचुरल फोर्स दोस एग्जिस्ट इन द नेचर, and that's why in between earth and moon have a attractional forces that is called gravitational force. हमने नहीं बनाया, नेचर ने बनाया. One more example I will tell you guys. पता है, this entire universe, okay, that size is still you people not known. Okay, if I ask you what is the size of universe, do you know guys? अभी तक किसी को नहीं पता यूनिवर्स कितना बड़ा है. Okay, अभी तक नहीं पता यूनिवर्स कितना बड़ा है. So if I ask you guys, अगर अभी तक नहीं पता यूनिवर्स कितना बड़ा है, तो you people can tell me कि यूनिवर्स का सेंटर कहाँ है. नहीं, आप नहीं बोल सकते. बट आई विल डिस्कस सम इंफॉर्मेशन अंडर द केस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी. माई वन पॉइंट इज हियर गाइज. डू यू नो इन दिस यूनिवर्स देयर आर मैसिव स्टार्स, गैलेक्सीज, celestial bodies, those are present. पता है why these all present there? Because in the nature, in this universe, 4 natural force exist. पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में there are 4 natural forces. और पता है दोस्त, because of these all natural forces पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है. ओके, मैं उसका नाम भी बोलता हूँ. एक तो सेल्फ, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स. दूसरा सेकेंड वन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. देखना कितना साइंस है दैट यू कैन सी इन योर सराउंडिंग्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. थर्ड वन दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स. फोर्थ दैट इज कॉल्ड वीक फोर्स. दिस ऑल द फोर्सेस, द वन फोर्स यू ऑलरेडी हैव सीन in the case of earth and moon because of have a tides effect. A part of electromagnetic strong force and the weak force, these all forces also exist in the universe. सुनो, ये हमने नहीं बनाया, ये कुदरत ने बना कर दिया है. And these all are the natural forces जो नेचर में exist करते हैं. And because of these all the natural forces, the whole entire universe stable and you people can see. धीरे धीरे उस बारे में चलेंगे. आपको क्या दिखा दोस्त? What is the science? Science exists in the nature, and these are the many features those you can see in the case of science. But second side, if you people will come about technology. Okay, second side, if you people will see about technology. What you will see technology? Technology is entirely made up by human being.
ओके यहाँ पूरी तरह से ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व होता है, तब जाके ये चीज़ आती है। आपको एक बात बताता हूँ, ये चीज़ें क्यों ऐसा है जो ह्यूमन बीइंग बनाता है, और जो भी ह्यूमन बीइंग बनाता है वो सब कुछ इसी साइंस के प्रिंसिपल्स पर बनाए जाते हैं। ओके, व्हाई? टू मेक द ह्यूमन लाइफ सिंपल, टू मेक ह्यूमन लाइफ इजी, टू मेक ह्यूमन लाइफ बेटर, ओके, to make human life simple, to make human life easy, to make human life better. Okay, overall I can tell you, for welfare of masses, overall I can tell you guys, for welfare of masses, लोगों के वेलफेयर के लिए टेक्नोलॉजी को लाया गया। ओके, और यहां पर टेक्नोलॉजी में आपको मिलता क्या है दोस्त? इनोवेशंस, इनोवेशंस। And how innovation happen? Through the help of R&D. R&D means research and development. That is research and development. That is research and development. So I hope you people very clear. Those technology we are going to study here guys. Okay, science and technology में वहाँ पर काफ़ी चीज़ें दैट एग्जिस्ट इन द नेचर, उसी के बेस पे हम बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे, एंड जो भी चीज़ें बनाएंगे वो ह्यूमन मेड होगा, तो वो हो जाएगी टेक्नोलॉजी, और उसको हम ह्यूमन के कल्याण के लिए यानी वेलफेयर ऑफ मासेस के लिए वी पीपल विल यूटिलाइज। ओके, और कैसे हम उन चीज़ों को लाएंगे, क्यों लाएंगे? तो यू पीपल अंडरस्टूड, टू मेक ह्यूमन लाइफ सिंपल, टू मेक ह्यूमन लाइफ ईजी एंड टू मेक ह्यूमन लाइफ बेटर। ओके फाइन, कैसे हम वेलफेयर ऑफ मास करेंगे? थ्रू टेक्नोलॉजी। तो हियर आंसर इज इनोवेशंस, खोज करेंगे। आइदर समथिंग विच आर प्रेजेंट इन द नेचर, उनको वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई, या वी विल ट्राई टू जनरेट, ओके, कुछ हम बनाएंगे एंड देन वी विल यूज इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इवन आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजी दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एंटायर थिंग। फाइन, यू कम हियर गाइज, you come here. Just whenever I started to describe you about science, तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था सनलाइट। सनलाइट, तो सनलाइट मीन्स व्हाट? इट इज अ काइंड ऑफ स्टार। सनलाइट मीन्स व्हाट? इट इज अ काइंड ऑफ स्टार। यू जस्ट लिसन गाइस, सनलाइट इज नेचुरली नेचुरल, ओके, इट्स अ नेचुरल। यहां पर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। When I will go into the discussion of unit number 8, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा एनर्जी में न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। न्यूक्लियर फ्यूजन इज द प्रिंसिपल, न्यूक्लियर फ्यूजन इज द प्रिंसिपल, ओके, बिहाइंड सन एनर्जी। अंडर एनर्जी चैप्टर आई विल टेल यू। मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं इन द बिगनिंग, इसलिए मुझे ये नाम लेना पड़ेगा। ओके, डोंट वरी, न्यूक्लियर फ्यूजन विल गो इन डिटेल, बट इतना याद रखो अभी, न्यूक्लियर फ्यूजन इज दैट प्रोसीजर जिसकी वजह से सन की लाइट या सन की एनर्जी होती है, दैट्स ऑल। ओके फाइन, बट इट इज द नेचुरल, इट इज द नेचुरल। साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू सेट अप आर्टिफिशियल सन, साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू डेवलप आर्टिफिशियल सन, artificial sun for the future perspective. So in the coming future, artificial sun we will develop. Okay, artificial sun, those we are going to set up for the coming future. In this case, we are going to set up one reactor that is called ITER reactor. आगे बात करेंगे, अब सुनो अभी, I just to differentiate the science and technology with the same example. Okay, अब इसको समझना। Fine everyone? Fine. सनलाइट जो है दैट इज बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, नेचर में इट इज ऑलरेडी गोइंग टू बी हैपन इटसेल्फ, हम नहीं कर रहे, वो सन के अंदर अपने आप हो रहा है, इससे सन की लाइट हमेशा आती है। लेकिन दोस आर गोइंग टू बी हैपन विद इन अ सन, सेम टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट वी आर गोइंग टू परफॉर्म समवेयर, और वो एक जगह है साउथ फ्रांस में, हम उस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं। ओके, साउथ फ्रांस में वी आर ट्राइंग टू मेक दिस एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल, the same as those going to be happen in the natural sun. We are going to perform that experiment, और हम सन बनाने की बात कर रहे हैं अर्थ पर, इस जगह पर वो एक्सपेरिमेंट करने की बात कर रहे हैं। and there is a target in the coming future 21 और 22 तक वो चीज शुरू हो जाएगी। okay, but here human has developed technologies. अब यू विल आस्क मी, सर इस सन को बनाकर क्या करोगे, इससे तो अर्थ खत्म हो जाएगा, अर्थ मेल्ट हो जाएगा। नहीं दोस्त, एक्चुअल में दोस्त वी पीपल विल डू हियर ना, इन दिस केस ऑफ सन जो हम बनाएंगे, तो उस सन की जो हीट रखेंगे ना, दैट वी पीपल विल मैनेज अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट।
ये उस लेवल तक नहीं जाएगा, दिस लेवल पर मिलियंस ऑफ द टेम्परेचर इन द सन गाइस। यहां पर हम अपने अकॉर्डिंग टेम्परेचर्स को रखेंगे और उस हीट को, उस टेम्परेचर को यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। दिस इज द टारगेट, इट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। Okay, it will be utilized for electricity generation. So this is a sustainable method जो हम यूज कर रहे हैं। अब सोचो, हम human through the help of technology, artificial sun experiment we have a plan for the coming future. For that purposes we are going to set up a reactor. रिएक्टर एक फर्नेस को बोलते हैं, एक भट्टी को बोलते हैं, जहां पर यूरेनियम टाइप की चीजें, मतलब हाइड्रोजन टाइप की चीजों को हम फ्यूज करेंगे। कैसे करेंगे वो आगे बात करेंगे, आप एप्लीकेशन पर जाओ, यू डोंट गो इन थियरी राइट नाउ। ओके फाइन, सो यहां पर करेंगे। और पता है दोस्त, दोस इलेक्ट्रिसिटी वी आर गोइंग टू जनरेट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, वो कैसे बनाते हैं पता है? वो बनाते हैं हम थर्मल पावर प्लांट से। दोस इलेक्ट्रिसिटी वी आर जनरेटिंग हियर, इट इज विद द हेल्प ऑफ थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट हम उसको बोलते हैं जहां पर वी पीपल विल बर्न व्हाट, कोल, है ना, कोयले को जलाते हैं और लेटर ऑन वी पीपल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। पर जानते हो इसमें कितना नुकसान होता है? दुनिया का 60% इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द वर्ल्ड वी आर जनरेटिंग थ्रू कोल। पर निगेटिव क्या है? जब कोल जलता है ना तो CO2 निकलता है, जब कोल जलता है ना तो SO2 निकलता है, कोल जलता है ना तो नॉक्सेस निकलता है। ये तीनों की तीनों बहुत ही डेंजरस गैसेस होती हैं। कुछ ग्लोबल वार्मिंग करती हैं, कुछ ग्लोबल कूलिंग करती हैं। Someone directly come in your body and directly affect to your body. A part of they directly affect the plant's body. So in that way, guys, these all the gases those generate after burning of coal, and a part of this other gases also generate. These are very very dangerous for the living organism and environment. Okay, पर अगर हम इस वाले टेक्नोलॉजी से चलेंगे ना तो पता है दोस्त, इन दिस केस हैव अ नो एयर पोल्यूशन, इस तरह का कोई पोल्यूशन नहीं होता। सो दुनिया में 60% जो ग्लोबल वार्मिंग है, ओके सॉरी, जो पोल्यूशन हो रहा है, मैसिव पोल्यूशन जो दुनिया में हो रहा है, उसका मेन सोर्स क्या है? दैट इज अ burning of coal, and finally the burning of coal we will minimize, and atmospheric temperature को we will further be what we will do established. तो जो प्रॉब्लम हमने जनरेट किया है समय के साथ, उसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। एंड यू पीपल नो वेरी वेल गाइस, मेनी कंट्रीज आर स्टिल सफरिंग इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस। इंडिया में भी अब काफी हद तक इलेक्ट्रिसिटी हो चुकी है, बट स्टिल मेनी प्लेसेस वेयर इंडिया इज आल्सो सफरिंग। तो समहाउ पूरी दुनिया से इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देने का है, जो देखते हैं आगे फ्यूचर में इफ दिस रिसर्च विल बी सक्सेसफुल तो इसको अच्छा खासा फायदा इंडिया को भी होने वाला है। This research, those we are human beings, are trying to make it successful. Here total 7 nations involved, and in these all 7 nations में हमारा अपना एक प्यारा देश भारत भी है। So this is I am telling you, I hope this examples, it will be help you to open your mind in this broad perspective that technology entirely it is developed by human being for human welfare and masses, और इससे जो भी नुकसान होते हैं उनको भी हम दूर कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हो, दूसरा ह्यूमन की लाइफ को बेटर कर रहे हो, ह्यूमन को और इजी बना रहे हो, ह्यूमन की लाइफ को, ह्यूमन को बेटर कर रहे हो, इजी बना रहे हो, और ह्यूमन की लाइफ भी बढ़ा रहे हो। देयर आर मेनी थिंग्स यू पीपल कैन सी हियर इन दिस केस ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। तो आई होप यू पीपल वेरी क्लियर स्पेस और टेक्नोलॉजी में व्हाट अबाउट डिफरेंसेस। आई हैव नॉट सीन एनी क्वेरीज, इट मींस यू पीपल आर एंजॉयिंग दिस एंटायर थिंग। चीजों को समझना मेरे साथ दोस्त, चीजें बड़ी मजेदार होती हैं जब तक, एंड माई मोटिव इज नॉट ओनली टू कम एंड फिनिश द एंटायर सिलेबस। ओके, ये अगर ऐसा होगा तो एक फॉर्मेलिटी हो जाएगी कि मैं आया, आपने पैसे दिए, मैंने अपना सिलेबस खत्म किया, बाबा आए। नो नो नो, हियर माय मोटिव इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द स्टडी गाइस, यू शुड आल्सो हैव अ व्हाट, इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट्स। तो वो इंटरेस्ट भी लाना होगा। आई ऑलवेज स्पोकन यू एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, इंटरेस्ट मैं लाऊंगा, डोंट वरी। ओके, बस यू जस्ट प्रॉमिस मी यू विल नॉट मिस माय सिंगल क्लास, एंड ट्रस्ट मी आफ्टर दिस लिसनिंग एंटायर लेक्चर 100% question you can write in your mains paper and 90% plus in your prelims examination. Okay, I'm not overconfident, I'm also in this field from last 20 years. Okay, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, and maybe somebody even know about me, तो धीरे धीरे काम करेंगे, but you only trust me and follow everything religiously. एक चीज हमेशा याद रखना, अपने सिलेबस को हमेशा देखते रहना, क्या हो रहा है, क्या बच रहा है, क्या हो रहा है, क्या बच रहा है, और पेपर्स खूब सॉल्व करना। इट विल बी एनफ टू क्रैक योर एग्जामिनेशन, ट्रस्ट मी। फाइन, अच्छा अब चलते हैं, थोड़ा अंदर आते हैं। फाइन, सो नो क्वेरीज, गुड, एक्सेलेंट। अगर यू विल आस्क मोर क्वेरीज, सो आई थिंक सो दैट
कुछ प्रॉब्लम हो रही पढ़ाने में, ऐसा भी मुझे समटाइम इट हैपन, बट आई विल नॉट टेक इट लाइक इन दैट वे. दोस क्वेरी यू हैव, यू कैन आस्क मी, फाइन. If it will be a genuine query, so I will definitely take your queries. So I think you people are very clear up to here. So just message me, yes sir, yes sir, yes sir at least. So I will understand that yes, you people have connected with me right now. अब ठीक चल रहा है, frequency matching हो रही है. जानते हो फिजिक्स में एक concept होता है frequency matching की. That is called as a resonance. पता है जब फर्स्ट डे कोई भी टीचर आता है, इवन इन माई क्लास ऑल्सो, तो वी ऑल पीपल हैव अ क्वेरीज. तो क्या पढ़ाएगा, कैसा दिखने में होगा, खूसटा तो नहीं होगा, खूसटा है ना, डरावना सा तो नहीं. वेरी क्वेरीज स्टूडेंट्स हैव, आई ऑलवेज हैव सीन इट. ओके, वो हर किसी को होता है, इवन मेरे साथ भी था व्हेन आई वाज एंटर इन द क्लास फर्स्ट डे, या कोई भी फर्स्ट डे आता है. लेकिन वही टीचर का अपना होता है किस लेवल पे वो पढ़ाता है, किस रेंज के लोगों को रखता है. यू ट्रस्ट मी, आई ट्राई टू फॉलो 0 लेवल टू 100% लेवल. मतलब किसी का लेवल अगर साइंस नहीं है उससे भी साइंस सिखाना है, और किसी का लेवल साइंस है तो उसे भी ठीक से साइंस बताना है, क्योंकि ठीक है आप साइंस जानते हैं पर ठीक से साइंस बताना है अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशंस. सो इट इज माई मोटिव. ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना. लव यू टू, है ना. तो ट्राई टू कनेक्ट विथ मी गाइस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मजा तभी आता है जब 1 घंटे 1.5 घंटे आप पढ़ते हो, टाइम का पता नहीं चल रहा. इट मीन्स यू पीपल एंजॉय दैट मोमेंट. और बस पढ़ाई ऐसे ही करेंगे. पढ़ाई ऑलवेज भी अ काइंड ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए. पढ़ाई शुड नॉट बी लाइक अ काइंड ऑफ फोर्स होना चाहिए. जैसे पापा बगल बैठ जाते हैं, ओके, एंड देन यू पीपल हैव अ प्रेशर, पापा है पढ़ना पड़ेगा. नो नो नो, इट शुड नॉट लाइक दैट. अपने मन से दिल करे यार, ओके, कि नो आई विल गो एंड डू दिस स्टडी. सो ये होता आपका सिलेक्शन, और यहीं पर आपका सिलेक्शन होता है. सो व्हेन यू विल स्टार्ट टू लव योर स्टडी, देन यू विल स्टार्ट टू गिव योर मैक्सिमम टाइम. और जब मैक्सिमम टाइम दोगे और स्टडी को एंजॉय करोगे तो 1 साल बहुत होता है. वेरी गुड गाइज, वेरी गुड, फॉलो योर. अच्छा, अब नाउ अच्छा, वन थिंग मोर गाइज, आप थोड़ा थोड़ा लिखेंगे भी मेरे साथ, ओके, थोड़ा थोड़ा लिखेंगे. और इंटायर नोट्स में आपको डिक्टेट भी कराऊंगा थोड़ा थोड़ा इन बिटवीन, विच विल बी रिक्वायर्ड. ओके, लेकिन ध्यान रखना समझने वाला पार्ट को मिस मत करना. ओके, जो अंडरस्टैंडिंग है दैट यू प्लीज डोंट मिस इट. ओके, फाइन. फिर आते हैं बैक, जहां थे हम, कहां थे हम, यहां थे हम. यस. So what about the general concept of science and technology? Okay, I hope everybody clear. Okay, अच्छा, one more thing guys, again I repeat, your syllabus, what mentioned in your syllabus? Technology effect development of human lives, and this is the portion that I'm discussing you right now. पहले मैं आपको बताता हूं कि टेक्नोलॉजी में कितने डायमेंशंस हैं, जिन डायमेंशंस को आपको जानना चाहिए और जो मैं आपके साथ थोड़ा बहुत कवर भी करूंगा. Okay, these dimensions you can see here guys, different disciplines of technology, जिसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे. Okay, इस डायमेंशन को समझ लो. साइंस एंड टेक में you people very clear. I don't think so you have any kind of doubt right now. Later on now we will come into the different discipline of technology पे बात कर लेते हैं. Different discipline of technology में what kind of discipline? Energy, space, information communication technology, defense, robotics, AI, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन. अब एक एक को पकड़ते हैं. ओके, एंड सी इन द फर्स्ट डे यू ट्राई टू क्रिएट द इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट. दिस इज माय मोटिव गाइस. पढ़ाई तो हर दिन चलेगी, लेकिन इंटरेस्ट नहीं आएगा तो पढ़ाई बोझल लगेगा. ये काम नहीं करना है. सो हियर आई विल ऑल्सो ट्राई टू गिव यू लॉट ऑफ इंटरेस्ट, बट यू पीपल प्रॉमिस मी हियर इन दिस चैट दैट यू विल नॉट मिस माई सिंगल क्लास, इवन नॉट अ फॉर सिंगल मिनट्स. आप मुझसे प्रॉमिस करो, ताकि मेरी एनर्जी और आपकी एनर्जी दोनों मिलकर एक रेजोनेंस हो जाएगी. ठीक है, दोनों की फ्रीक्वेंसी मिलकर. ओके, फाइन. चलो चलते हैं दोस्त. सो डिफरेंट डिसिप्लिन में वी विल टॉक. ओके, डिफरेंट डिसिप्लिन वी विल टॉक. फाइन. फर्स्ट एनर्जी पे बात करते हैं, देन स्पेस, आईसीटी. बट यू रिमेंबर गाइस वन थिंग, अगेन आई रिपीट, टेक्नोलॉजी इफेक्ट्स डेवलपमेंट ऑन ह्यूमन लाइफ. तो दिस वन एवरीबडी क्लियर? हाँ सर, ये पॉजिटिव इफेक्ट भी है टेक्नोलॉजी का और नेगेटिव इफेक्ट भी है टेक्नोलॉजी का. अब देखो, अभी यहाँ पर जो आप मेरे साथ चैट पे हो ना, इसका पॉजिटिव इफेक्ट है, लेकिन वहीं कोई सेकेंड साइड कोई पर्सनल चैटिंग करके अपना टाइम भी बर्बाद कर रहा होगा, दैट इज अ नेगेटिव इफेक्ट. एंड पॉजिटिव एंड इफेक्ट पैरेलली विथ यू पीपल गाइस. आप खुद इस समय एग्जांपल देख सकते हैं. योर पापा मामा इज सीइंग दैट यू पीपल आर फोकसिंग योर स्टडीज, बट समबडी इज गोइंग टू व्हाट, अपने मामा पापा को धोखा दे रहे हैं. आप खुद जानते हैं.
Okay, your mama papa, how they carry this money and all and they deposit it here, you people never know. जिस दिन आप mama papa बनोगे, that day you realize. तो आप खुद जानते हो. Okay, this technology those we people are using right now, इसका use भी होता है और इसका misuse भी होता है. So every technology, either you go energy, you go on space, you go on information communication technology, you go on defense technology. Okay, defense भी जरूरी है, लड़ाई भी जरूरी है, क्योंकि लड़ाई के बाद शांति होती है. ओके और एटम बम भी रखना जरूरी है, क्योंकि एटम बम रखते हो तो दूसरा वाला तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करता है. ओके तो देयर इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एवरीथिंग है. अब आप उस समय उसको कैसे लेते हैं, तो दैट्स व्हाई हियर आपके पेपर में सिर्फ लिखा है टेक्नोलॉजी इफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ. तो कैसे इफेक्ट करता है उसी को पढ़ना है. तो वहां पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बात करेंगे. फाइन, पहले हम लोग थोड़ी थोड़ी बात करते हैं एनर्जी. ओके, एनर्जी का पॉजिटिव, एनर्जी का नेगेटिव, स्पेस का पॉजिटिव, स्पेस का नेगेटिव, ICT positive, ICT negative. Similarly, all guys. And then at last, I will sum everything, and then finally your answer will complete. That is written below it. Okay? Okay. Great, great, great. Everybody is giving me positive response. Great guys, great. इससे ना पता है मेरी भी एनर्जी बढ़ती है. मुझे भी अगर लेजी स्टूडेंट्स मिल जाते हैं क्या होता है, एनर्जी डाउन. एनर्जी के स्टूडेंट मिल जाता है तो टीचर्स और एनर्जेटिक हो जाते हैं. फाइन, डोंट वरी, आई विल कीप यू एनर्जेटिक. फाइन, सो लेट अस स्टार्ट गाइस. विल डिस्कस अबाउट एनर्जी. ओके, विल डिस्कस अबाउट एनर्जी. अगेन आई रिपीट, एनर्जी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. पहले चीजों को समझो, लास्ट में कंक्लूजन में योर आंसर विल कंप्लीट. थोड़ा बहुत इफ यू कैन राइट तो यू कैन डू इट. ओके फाइन, यस fine. You come here guys, energy, energy, energy. Why energy is important guys? Again you people can understand guys. देखो energy में there are two types of energy have. Okay, but we people are discussing about अभी चलो मैं पहले दो टाइप बता ही देता हूँ. ओके तो आपको क्लियर हो जाएगा. वन होता है दैट इज कॉल्ड फूड एनर्जी. ओके सर, आई अंडरस्टूड. यस, यही मैं कह रहा था. एक जो आप खाने के बाद आपकी बॉडी में आता है, और दूसरा जो कि फ्यूल एनर्जी होता है. द सेकेंड वन इज अ फ्यूल एनर्जी. पता है दोस्त, टेक्नोलॉजी में ये वाली एनर्जी होती है, टेक्नोलॉजी में ये वाली एनर्जी नहीं होती है. So the first concept that I'm going to discuss, ये तो बायोलॉजी में आती है ना, न्यूट्रिशन में आता है ना, बट टेक्नोलॉजी में दिस इज द फ्यूल एनर्जी दैट डिस्कशन इज रिक्वायर्ड. तो लेट अस स्टार्ट विद द फ्यूल एनर्जी. शुरू करते हैं, चलिए. ओके, अब आप समझ गए कौन सी एनर्जी पे हम बात कर रहे हैं. अब सुनना, दोज एनर्जी वी पीपल आर यूजिंग. ओके, देखना आपको एडवांटेज भी दिखेगा और डिसएडवांटेज दोनों दिखेंगे. ओके, और एवरी टॉपिक्स पे आई विल टेक 10 मिनट्स. ओके, तो कम से कम 40-50 मिनट्स आई विल टेक, एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स आई विल टेक. खत्म हो जाएगा और लास्ट के 15 मिनट्स में कंक्लूजन्स में व्हाट यू विल गेट, योर इंटायर आंसर. सो यू विल हैव अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव. और आज के बाद जब किसी से डिस्कशन करोगे ना, यू विल हैव अ लॉट ऑफ पॉइंट्स. ओके, जो अब तुम्हें एक चीज हमेशा रखना दोस्त, जितना तुम्हें नॉलेज होता है ना उतना ही तुम्हें कॉन्फिडेंस आता है. ये चीज मत भूलना. तो बी क्रेजी फॉर नॉलेज. कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा पढ़ने के बाद जब नॉलेज हो जाएगा. जितने लोगों के पास नॉलेज नहीं होता उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है. ये मेरा फंडा है, इसे याद रखना. सो बी क्रेजी इन दिस क्लास टू लर्न द टॉपिक्स. डोंट कम इन दिस क्लास टू क्रैक द एग्जाम्स. आप इस क्लास में सिर्फ नॉलेज के लिए आएंगे, एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए नहीं आएंगे. क्योंकि जब भी आप एग्जाम के बारे में सोचेंगे तो थोड़ा हार्ट बीट बढ़ जाता है. वो थोड़ा हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी सिस्टम का एक कोऑर्डिनेशन होता है. थोड़ा बताऊंगा ह्यूमन फिजियोलॉजी में. ओके एवरीबॉडी, फाइन. सो लेट अस स्टार्ट. एनर्जी positive and energy negative. You just see guys, energy, in this case of energy, the different mode of energy we are using. Okay, what about the different mode of energy we are using? See, एक तो those we are using as a conventional type energy. Fine. Now question is, what about the meaning of conventional type of energy sources? Conventional उसको बोलते हैं जो कन्वेंशन में होता है, यानी बिहेवियर में होता है, यानी जनरली यूज में होता है. आप मुझे बताओ विच टाइप ऑफ एनर्जी सोर्सेज वी आर यूजिंग इन बिहेवियर. तो आप खुद जानते हैं कोल, आप खुद जानते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, आप खुद जानते हैं गैसियस नेचर ऑफ फ्यूल. क्यों? आजकल CNG, LPG ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है. सो दिस इज द कन्वेंशनल नेचर ऑफ फ्यूल. सो दोज फ्यूल वी आर यूजिंग कॉमनली एवरीवेयर. ओके, दिस इज कन्वेंशनल.
और आपको खुद अभी मैंने बोला था यार 60% देश की इलेक्ट्रिसिटी कोयले से ही बनती है, दुनिया की भी और इंडिया की भी। दैट 60% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटिंग फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम कोल। तो आप खुद कह सकते हैं तो कोल दुनिया में सबसे ज्यादा हुआ, इट इज अ कन्वेंशनल टाइप। फाइन, अपार्ट ऑफ दिस अब और देखना, नॉन कन्वेंशनल की तरफ जाते हैं। ओके, नॉन कन्वेंशनल दोज वी आर नॉट यूजिंग इन बिहेवियर। तो कौन सी ऐसी चीज है जो जनरली हम अभी बिहेवियर में नहीं यूज कर रहे? तो यू पीपल कैन अंडरस्टैंड, है ना। जैसे आप सोलर एनर्जी की बात करो, जैसे यू टॉक अबाउट विंड एनर्जी, जैसे यू टॉक अबाउट जियोथर्मल एनर्जी, यू टॉक अबाउट जियोथर्मल एनर्जी। ओके, इस तरह की एनर्जी की अगर हम बात करें, ओके, यहां पे हाइड्रो पावर प्लांट भी होगा। हाइड्रो पावर प्लांट भी कन्वेंशनल है। ओके, अच्छा खासा इलेक्ट्रिसिटी बनती है, करीब 12 से 14% इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में हाइड्रो पावर प्लांट से है। तो ये आपको क्या दिख रहा है? दीज आर नॉन कन्वेंशनल, दीज आर नॉट इन बिहेवियर। ओके, तो ये सारा का सारा है। और सुनो और सुनो और सुनो, नॉन कन्वेंशनल में अगर आई विल गो इनटू अदर एग्जांपल्स। ओके, हाँ, तो यू आर राइट, कन्वेंशनल का मतलब ठीक है शशांक, यू आर राइट, दैट इज इन ट्रेडिशनल, यू आर डेफिनेटली राइट, है ना। क्यों ट्रेडिशनल है? क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी बहुत पहले से चल रही है, बहुत पहले डेवलप हो चुकी है। इन चीजों के बारे में हमें बाद में पता चला कि अच्छा देयर आर ऑल्सो सम अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, हम इनकी तरफ भी जा सकते हैं। ओके, अनदर वन, अ पार्ट ऑफ दिस other non-conventional which are not in traditional या not in behavior. If you go here guys, in this case non-conventional, यहां पर आप देखो ना, you will get nuclear energy, you will get nuclear energy. इंडिया में दिस टाइम न्यूक्लियर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन कितना है पावर जनरेशन के लिए पता है? इट्स अराउंड 3%। वहीं कोल को वी आर यूजिंग एट अराउंड 58 to 60%. But what about the contribution of nuclear energy in India for electricity generation? It's a 3%. आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है सर ये तो एक तरह के हमको एनर्जी के बहुत सारे एडवांटेजेस दिख रहे हैं, है ना। वो जो अभी हम कर रहे हैं, वो जो हम कभी फ्यूचर में करेंगे, वो जो हम कभी और फ्यूचर में करेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी। बट साइमल्टेनियसली अगर यू पीपल गो तो पैरेलली हैव अ डिसएडवांटेजेस आल्सो। What about disadvantages? देखो ना, अगर आप कोल और पेट्रोलियम्स और गैसेस को अगर यूज करते हो दोस्त, तो आप यू आर गोइंग टू डू व्हाट? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। आप सोचो, ओके, यू जस्ट ओनली थिंक एंड ट्राई टू जनरेट आंसर। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। सो व्हाट वी आर डूइंग? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस कर रहे हैं। पहला, हाँ सर कोल फॉसिल फ्यूल है, हाँ सर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फॉसिल फ्यूल है, हाँ सर जो नेचुरल गैसेस बनते हैं फॉसिल फ्यूल है। तो हम यहां कर क्या रहे दोस्त? इन दिस ऑल इंटायर केसेस में अल्टीमेटली वी पीपल आर गोइंग फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस कर रहे हैं। कितना गलत काम कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा, यू टेल मी गाइस, यू टेल मी, समय के साथ ये खत्म हो जाएंगे। व्हाट अबाउट योर न्यू जनरेशन विल यूज? वो तो बोलेगा पापा मम्मा आपने हमारे लिए कोयला भी नहीं छोड़ा। वो बोलेगा पापा मम्मा आपने हमारे लिए पेट्रोल्स भी नहीं छोड़ा। बोलेगा पापा मम्मा आपने हमारे लिए मीथेन गैस भी नहीं छोड़ा, सेल गैस भी नहीं छोड़ा। हाउ आई विल सर्वाइव? ओके, मैं आगे कैसे एनर्जी सोर्सेस पाऊंगा? तो दैट्स व्हाई वी पीपल आर गोइंग टू डू एक्सप्लॉयटेशन। नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, हम पॉजिटिव करके नेगेटिव में भी आ रहे हैं। और सुनो दोस्त, इफ आई जस्ट टोल्ड यू गाइस, व्हेन कोल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बर्न, गैस में ऐसा नहीं होता, बट व्हेन यू पीपल बर्न कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्रिएट अ लॉट ऑफ मैसिव पॉल्यूशंस। इनसे बहुत सारा पॉल्यूशन भी होता है। और ये देखो, अगर पॉल्यूशन होता है तो यहां आपको क्या मिल रहा है? CO2 मिल रहा है, माय गॉड, SO2 मिल रहा है, माय गॉड, नॉक्सेस मिल रहा है, माय गॉड, कार्बन मोनोऑक्साइड, माय गॉड, एटसेट्रा, माय गॉड, इतने सारे माय गॉड मिल रहे हैं। अल्टीमेटली व्हाट यू गॉट? सर डिसएडवांटेजेस भी है, सर डिसएडवांटेजेस भी है। आप सोचो, आपको मिल रहा है, डिसएडवांटेजेस भी है। So I'm just telling you guys, in this energy you got it, how advantages, how disadvantages. Okay, everybody clear? शशांक absolutely right, global warming अभिषेक absolutely right. Okay, ऐसी आंसर लिखो, okay, ऐसी मजा आता है, ठीक है। तो मुझे लेकिन फालतू बातें मत करना। ओके, यू रिमेंबर हमारे पास शॉर्ट टाइम होता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़नी होती हैं। ओके फाइन, हाँ बस लिखते रहो। इन दैट वे ना इट विल लुक लाइक दैट वी आर कनेक्टिंग टुगेदर। आपके आंसर आएंगे, दिखता रहेगा, कभी बोलूंगा कभी नहीं बोलूंगा, आपको भी बोलूंगा, आपको अच्छा लग रहा है सर मेरा नाम ले रहे हैं। ओके, पर सुनो, अच्छा तब लगेगा आप सेलेक्ट हो जाओगे, मैं देख DSP से बात कर रहा हूँ, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके, कम हियर, यू टेल मी गाइस, यहाँ पे एवरीबडी क्लियर? जल्दी बोलो यस सर, यस सर, जल्दी बोलो यस सर, यस सर। एवरीबडी क्लियर हियर? लिख दिया करो फट फट फट, सोया मत करो। ओके, मेरी क्लास में अरे सब सोच रहे हैं, सब क्या बताएं, सब सोच रहे हैं सब।
अच्छा, नाउ दिस इज द एनर्जी. कम नेक्स्ट गाइस, कम नेक्स्ट. ओके, शुक्ला जी चल नहीं रहा है क्या? ये चल रहा है, नेट चल रहा है. सो तो नहीं गया कंफर्म के बाद सब पूछो, तब सो नहीं रहा है ना? हाँ ठीक है, अब ठीक है. एक बच्चा, हाँ आप जगह हैं, सब कुछ जगह है सब, है ना? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अब कुछ आया है ना? अच्छा, थोड़ा स्लो था, डर लगता है सो ना जाए सब, है ना? अच्छा, नाउ एनर्जी वाइज क्लियर. नाउ कम सेकंड वन. ओके, नाउ कम हियर अगेन. सो कम हियर. सो एनर्जी पार्ट आई फिनिश्ड. अरे रे, ध्यान देना जो मैं कर रहा हूं. देखो, एनर्जी पार्ट आई फिनिश्ड बहुत ही स्मार्टली, जस्ट फ्यू इंफॉर्मेशन आई डिस्कस. ओके, बहुत अच्छा बच्चा. ओके, कम. अब नाउ यू कम ऑन स्पेस पार्ट. कम कम कम, स्पेस पार्ट, स्पेस पार्ट. यस, अरे रे, या कम ऑन स्पेस पार्ट. इफेक्ट ह्यूमन लाइफ, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, दोनों पैरेलली चलेगा. ओके फाइन, पहले एडवांटेजेस देखते हैं. व्हाट अबाउट द बेनिफिट विद द स्पेस टेक्नोलॉजी है? वन थिंग आई विल टेल यू इन द बिगनिंग दैट यू रिमेंबर, स्पेस टेक्नोलॉजी इज अ इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक. इट कनेक्ट विथ मेनी अदर टेक्नोलॉजीज. तो पहले वो बता दूं, स्पेस टेक्नोलॉजी दोस्त बहुत सारी टेक्नोलॉजी के साथ इंटरडिसिप्लिनरी है. कौन कौन सी वो टेक्नोलॉजी है जिनके साथ इंटरडिसिप्लिनरी है? लेसन, एक तो तुम्हारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंटरडिसिप्लिनरी है. सेकंड वन डिफेंस टेक्नोलॉजी इंटरडिसिप्लिनरी है. ओके, सो स्पेस टेक्नोलॉजी इज अ इंटरडिसिप्लिनरी विद आईसीटी एंड डिफेंस. क्यों बताना जरूरी है? आप यहां देखो ना. ओके, यू सी हियर गाइस, बिकॉज स्पेस, ओके स्पेस, ये देखो स्पेस, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और डिफेंस तीनों लिखा हुआ है. तो यू शुड बी वेरी क्लियर, स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ हम आगे की टेक्नोलॉजी भी पढ़ने वाले हैं. लेकिन यहीं पे बता दूं, स्पेस टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर काम करती है. ओके, इंटरडिसिप्लिनरी है, नॉट इन एवरी एस्पेक्ट बट इन मेनी एस्पेक्ट्स. हाउ, व्हाट, मैं बताता हूं. अच्छा, स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या होता है? इन द केस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी वी पीपल डू द स्टडी ऑफ सैटेलाइट्स की बात करते हैं, हम स्पेस की बात करते हैं, स्पेस की स्टडी की बात करते हैं, स्पेस में सैटेलाइट भेजने की बात करते हैं, स्पेस में गगनयान की बात करते हैं. वी प्लानिंग, स्पेस में जाकर हम मून की स्टडी करना चाहते हैं, स्पेस में जाकर हम इंसान को रखना चाहते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड. स्टडी स्पेस टेक्नोलॉजी में रिगार्डिंग स्पेस हो गया. फाइन. यू टेल मी गाइस, व्हेनेवर यू पीपल लॉन्च द सैटेलाइट अंडर स्पेस टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट क्या होता है? आपका मोबाइल फोन चलता है. लो, इंफॉर्मेशन से जुट गया. विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन, आप देखो ना, सीधा आपका सैटेलाइट से भी इंटरनेट चलता है. सैटेलाइट की टीवी आप देख ही रहे हो, DTH 24/7. ये क्या चल रहा है? विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट आपको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मर्ज हो रहा है. ओके, यानी स्पेस टेक्नोलॉजी कनेक्टिंग विद द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. वन साइड स्पेस टेक्नोलॉजी रिसर्च, यू पीपल आर डूइंग स्पेशली टू फाइंड आउट लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट स्पेस. Second side, those satellite we are going to launch in the space, with the help of satellite guys we are going to do the study of what? हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद ले रहे हैं. इतना ही नहीं, मैं आपको और बताता हूं, सैटेलाइट की मदद से दोस्त आप उसको जीपीएस में भी यूज कर सकते हो. पता है, इंडिया मिस्ड अ लॉट ड्यूरिंग कारगिल वार. क्या हुआ मैं बताता हूं, सुनो. कुछ हमारे पास कमियां थी ड्यूरिंग कारगिल वार. इट वॉज इन 1998 और हमने फतह कब कर लिया? 1999. कारगिल की बात कर रहा हूं. कारगिल स्टार्टेड 1999 और खत्म हुआ 1999 में. क्या था इसमें? सुनो, इसमें था क्या? उस समय ऐसा था, समझना, टेक्नोलॉजी लैकिंग थी. फाइन. दिस इज द हिली एरिया, ये हम हैं मैदानी फील्ड में, ये पाकिस्तान के बंकर्स हैं जो हिली एरियाज में हैं. आप मुझे बताओ, ऊपर से लड़ाई करना कितना आसान है और नीचे से लड़ाई करना कितना, ऊपर देखना कितना मुश्किल है. यही दिक्कत थी. हमने कहा भाई यूएस, तुम्हारे पास एक जीपीएस है, उसका नाम है नॉस्टार. और जीपीएस कैसे काम करता है? सैटेलाइट की मदद से. बताऊंगा व्हेन आई विल गो इनटू द स्पेस टेक्नोलॉजी. तो हमने कहा भाई दोस्त एक काम करो, तुम अमेरिका, तुम थोड़ा हमें ना अपने सैटेलाइट्स का हेल्प दे दो, क्योंकि सैटेलाइट से पता चल रहा है कि इनके बंकर्स कहाँ हैं और हम उसी हिसाब से टारगेट करके यहाँ पे मिसाइल फेंक के इनके बंकर्स को खत्म करके कारगिल पे फतह करके वहां चढ़ जाएंगे, अपना एरिया ले लेंगे. अमेरिका ने मना कर दिया, नहीं दिया. सोचो, with the help of space technology we people can find out the particular location. और हमारे जो सैटेलाइट्स हैं ना दोस्त, वो उस एरिया को देख नहीं रहे थे.
वो तो बाद में जाके हमारे पास आज IRNSS आ गया, आज हम देख सकते हैं, लेकिन उस समय फालतू में बताओ हमारे कितने सैनिक शहीद हो गए। हाउ मेनी पीपल्स आर गिविंग माइटी आर देयर इन दैट पीरियड ऑफ टाइम, जो सोल्जर्स थे, है ना। कहते हैं कितनी माओं का गोद जो है सूना हो गया, कितने बच्चे हैं उनके पिताजी खत्म हो गए, कितनी महिलाएं हैं जिनके हस्बैंड चले गए। तो दैट वाज द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, एंड यूएस क्या करता है, हजारों मारता है, 3 सैनिक शहीद होते हैं यूएस के, क्यों? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। So this is the reason I'm telling you. I hope you understood how space technology is connecting with information communication technology and defense technology. Okay, how is space technology connecting information and technology and defense? अब आपको समझ में आने लगा कि how these all are interdisciplinary, और space technology का रिसर्च क्यों ICT और डिफेंस के साथ चलता है मैक्सिमम केसेस में। So this is the reason space technology even also help in information communication and in defense technology. Okay guys, हाँ US refused, नाविक बहुत बढ़िया। नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज मैं वैसे ही स्टडी के टाइम में करूंगा, अभी बता देता हूं, ये बहुत ज्यादा हाई इनिशियल कॉस्ट होता है। इफ यू वांट टू सेट अप द सोलर एनर्जी ना, पैसा चाहिए, एंड अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट, जितना हम नॉन कन्वेंशनल में जा रहे हैं ना सोलर विंड में, उस हिसाब से वहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है। ऑन द अनदर वन, इसको बनाने में ना टाइम लगता है। इट्स नॉट अ कप ऑफ टी कि सनलाइट आई इलेक्ट्रिसिटी जल गया बन गया ना। फोटोवोल्टाइक्स जो होते हैं, बताऊंगा मैं, आगे बढ़ाऊंगा, उनको टाइम लगता है। सन एनर्जी आती है, देन दे फाइनली क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी फुल होता है। सो देयर इज मेनी शशांक, आई टोल्ड यू नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। बट अभी तो हम ब्रीफ में कर रहे हैं ना, छोटा छोटा सा। एनर्जी अलग से चैप्टर पढ़ना है दोस्त, स्पेस अलग से चैप्टर पढ़ना है दोस्त, एनवायरमेंट अलग से चैप्टर पढ़ना है दोस्त, एक दिन में थोड़ी ना खत्म होने वाले। ओके, यस। So you tell me guys, you people clear how space technology interdisciplinary? अब थोड़ा पॉजिटिव और थोड़े नेगेटिव पे चलते हैं, इधर आओ, you come. Space technology, okay, space technology, it's positive and it's negative. You come. पॉजिटिव बात करते हैं, यानी we'll talk about advantages. अब देखो advantages तो you already understood. वो ICT एंड डिफेंस के साथ व्हाट आई टोल्ड यू, वो एडवांटेज ही तो चल रहा था। फाइन, हो गया, आपको समझ में आ गया। हाँ, तो हायर इन्वेस्टमेंट, लो इज इन द प्रॉफिट इन द नॉन कन्वेंशनल, ये एकदम सही सर्वेश लिख रहा है। सर्वेश जो कह रहा है एकदम सही बोल रहा है, सर इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा है लेकिन प्रॉफिट उस हिसाब से नहीं है। लेकिन अभी ऐसा मत बोलो, आगे हम लोग और डिटेल में बात करें। एनर्जी एक टॉपिक ऑलरेडी है जो मैं बढ़ाऊंगा। ओके एवरीवन, फाइन, वेट। सर्विस, वेरी गुड। इसका मतलब यू आर देयर इन द फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट डे शायद थे थोड़ा। अब देखो मैं बता रहा हूँ, लिसन। तो स्पेस का एडवांटेज डिसएडवांटेजेस पहले सुनो। ओके, एडवांटेजेस में यू ऑलरेडी नो वेरी वेल गाइस। स्पेस स्टडी वी कैन डू, वी विल नो अबाउट द नॉलेज ऑफ स्पेस, यानी कहीं ना कहीं आप इसकी मदद से, जैसे टेलीस्कोप वगैरह भी हम यूज करते हैं। ओके, एंड वी फाइंड आउट अबाउट द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। अब यूनिवर्स हो गया तो लॉट ऑफ स्टडी हो गई। ओके, अर्थ बियॉन्ड कहीं लाइफ की पॉसिबिलिटी है, अर्थ बियॉन्ड कहीं और ऐसा कोई जगह है जहां अर्थ है क्या, जिसको गोल्डीलॉक जोन कहते हैं। बहुत सारे, उस लेवल पे अभी बात नहीं करेंगे। व्हेनेवर विल गो इन द चैप्टर, वहां पे डिटेल में जाएंगे। अभी जस्ट सुपरफिशियल सा, बिकॉज एक जनरल टॉपिक है, साइंस एंड टेक के क्या मतलब उस तरह की ह्यूमन लाइफ इम्पैक्ट्स हैं। तो टेलीस्कोप वगैरह से यूनिवर्स की स्टडी करो। इवन आप एक काम करो, आप मैपिंग कर सकते हो, अर्थ की। आप वेदर के बारे में पता कर सकते हो, वेदर फोरकास्टिंग यू कैन डू, डिजास्टर मैनेजमेंट यू कैन डू। गाइस, ये क्या हो रहा है, आपको फायदे ही फायदे दिख रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट यू कैन डू। आप किसी कंट्री की जासूसी करना चाहते हो, देख लो। आप कंट्री की सेफ्टी और सिक्योरिटी करना चाहते हो, बॉर्डरिंग एरिया की, इफ यू वांट टू सेफ एंड सिक्योर बॉर्डरिंग एरिया, तो यू कैन यूज द रोल ऑफ सैटेलाइट। ये क्या दिख रहा है, छोड़ो ना दोस्त। इसके अलावा पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट बेस्ड और सारी चीजें चल रही हैं। पर एक बात याद रखना, जो इंटरनेट होता है, अगेन आई विल रिपीट, 95% से ज्यादा इंटरनेट जो चलता है, इट इज थ्रू द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। लगभग 5% और उससे कम जो इंटरनेट होता है वो चलता है हमारा सैटेलाइट से। ओके, लेकिन सैटेलाइट आया ना कहीं तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब पार्ट ऑफ दिस गाइस, नेविगेशन कर सकते हो, रास्ते वास्ते के लिए बात करेंगे। Okay, so in that way you are getting so much advantages. Disadvantages क्या है, अगर you people can do spy on other country, तो another country can do spy on you। बहुत बढ़िया, पहला स्पाई कर सकता है तुम्हारे ऊपर। दूसरा,
स्पेस वॉर भी तो हो सकता है ना, स्पेस वॉर भी तो हो सकता है, स्पेस भी एक जगह है जहां पे वॉर हो सकता है। अभी एक आंसर बहुत अच्छा मुझे मिला था, व्हाट वाज दिस, सर्वेस हैज मेंशन नेगेटिव इफेक्ट एज अ केसलर सिंड्रोम, वेरी गुड। केसलर सिंड्रोम हम क्या बोलते हैं, दिस इज द स्पेस डेब्रीजेस, ये स्पेस के कचड़े हैं दोस्त, स्पेस डेब्रीजेस, दिस इज स्पेस डेब्रीजेस। पता है विद टाइम दो सैटेलाइट वी आर गोइंग टू सेंड एंड सेंड, वो अपने ऑर्बिट में है, लग गया, उसने काम किया, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इट्स लाइफ स्पैन वो खत्म हो गया, खत्म होने के बाद वहां से हटा नहीं, इट इज स्टिल देयर इन देयर ऑर्बिट, और वो आज वहां पे एक कचड़ा है। तो सोचो 1975 इट वाज द फर्स्ट सैटेलाइट दैट इंडिया लॉन्च विद द हेल्प ऑफ रशिया, शायद आप नाम जानते होंगे, आर्यभट्टा वाज लॉन्च विद द हेल्प ऑफ फॉरेन लॉन्च व्हीकल्स, रशिया ने भेजा था हमारे सैटेलाइट्स को। ओके इस तरह से 1975 से टिल नाउ बहुत सारे सैटेलाइट हमने भेजे हैं, और सब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इट्स लाइफ स्पैन दिस ऑल आर इन देयर ओन ऑर्बिट्स एंड दे आर एज अ स्पेस डेब्रीज आर केसलर सिंड्रोम। ठीक है, बहुत सही, कंजेशन इन द स्पेस है, बहुत सही। आर्या अवस्थी यू मेंशन इट्स एब्सोल्युटली राइट, हम स्पेस में क्या कर रहे हैं, कंजेशन कर रहे हैं, क्योंकि इतने सारे सैटेलाइट्स अगर हो जाएंगे तो एक सैटेलाइट का दूसरे सैटेलाइट के साथ देयर विल बी क्या होगा वहां पर, वो कंफ्यूजन्स हो सकते हैं, या कह लो सिग्नल्स के इंटरफेरेंसेस हो सकते हैं, एंड सिग्नल इंटरफेरेंसेस विल हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज। ओके सिग्नल इंटरफेरेंसेस विल हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज। ओके एवरीबॉडी, तो एक ये भी इशू है। शुक्ला जी थोड़ा सा ऐसे कर दो, थोड़ा सा ऐसे हल्का सा दिखेगा। ओके अच्छा, और बोलो। और सर कैन वी से दैट ड्यू टू फेल्योर ऑफ लॉन्च इन द स्पेस वेस्ट डिस्पोजल इन द ओशन आर सी, बच्चा वो है, बोल सकते हैं, लेकिन वो इतने बड़े लेवल पे नहीं है कि अगर एनी स्पेस इज कुछ भी अगर फेल हो गया तो ओशन में गिर गया, इतनी बड़ी बॉडी है। ओके उससे ज़्यादा तो ओशन में टैंकर ही बह जाते हैं, उससे ज़्यादा ओशन में मतलब समझ रहे हो ना, और पेस्टिसाइड जो जा रहा है, सो दैट वी विल नॉट सी एज अ बिग लेवल। ठीक है, थ्रेट्स टू सैटेलाइट्स एंड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, बहुत सही, क्योंकि अब इतने सारे जो डेब्रीजेस हैं, दोस डेब्रीजेस वी आर गोइंग टू सेंड देयर, दिस ऑल द डेब्रीजेस विद टाइम क्या होगा, ये सब के सब हो सकता है कि समय के साथ वहां पर दूसरों के साथ जो सैटेलाइट है उनके साथ कोलिजन करें और वहां की चीजों को बर्बाद करें। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, इट इज पॉसिबल, वहां पे हो सकता है। ओके गाइस, अच्छा अब देखो आपको क्या समझ में आ रहा है सर, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, अब हमारा ब्रेन खुल रहा है, अब चीजों में मजा भी आ रहा होगा, आई थिंक सो। ओके अब आप क्या सोच रहे हो नहीं पता। ओके कम नेक्स्ट, बहुत है अभी के लिए, इतना बहुत है, दैट इज इन द ब्रीफ। ओके नाउ वी कम इनटू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। Okay, now we'll come into the information and communication technology. Information and communication technology. What will come in information and communication technology? See guys, in information and communication technology again have a advantages and disadvantages. और I am expecting with you people guys, आप मुझे बहुत कुछ आंसर दे सकते हैं। ओके क्योंकि अब आप सोच सकते हैं, मैंने आपको इस हिसाब से पढ़ा रहा हूं कि यू कैन थिंक, यू कैन क्रिएट, यू कैन बी क्रिएटिव माइंड राइट नाउ, दैट आई ऑलवेज स्पोक इन यू। ओके हाउ द प्रॉफिट इज अ लेस सर, दे हैव अनटैप पोटेंशियल, कैसा प्रॉफिट गार्गी मुझे बताओ, किस रिस्पेक्ट में यू आर आस्किंग मी हाउ द प्रॉफिट इज लेस सर, जरा ये गार्गी बताओ, इन नॉन कन्वेंशनल में कैसा प्रॉफिट। बच्चा सुनो मैं बताता हूँ, ठीक है, सोलर एनर्जी को इंस्टॉल करने में अच्छा खासा पैसा लगता है। ओके आपको मैं एक बात बताता हूँ, सोलर एनर्जी से तुम अपने घर की लाइट चला सकते हो, पर सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाकर इंडस्ट्री चलाना बहुत मुश्किल बात है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इंडस्ट्री के लिए आपको 440 वोल्ट, उससे ज्यादा बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और उसके लिए आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो ना, दैट इज सो मच ह्यूज यहाँ पर, इसीलिए कहते हैं हाई इनपुट लगता है और लेस आउटपुट आता है। और न्यूक्लियर एनर्जी में इट्स टोटली अपोजिट, लो इनपुट और हाई आउटपुट होता है इस केसेस में। ओके सॉरी गलत हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी में अगर हाई इनपुट लगता है तो उससे कई गुना ज्यादा हाई आउटपुट भी आता है। ठीक है, ये न्यूक्लियर एनर्जी का फायदा भी हो जाता है। ओके बच्चा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा आईसीटी में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, व्हाट विल कम हियर गाइस, आईसीटी में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सी एडवांटेजेस, चलो आप बताओ सर, मोबाइल फोन है ना, ग्रेट, मोबाइल फोन है बहुत बढ़िया। सर ऑप्टिकल फाइबर है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फॉर अ गुड इंटरनेट कनेक्शंस, बहुत बढ़िया। और
और सर DTH है ना, वेरी गुड वेरी गुड, DTH फैसिलिटी दोज भी पीपल आर गोइंग टू एक्सेस, दिस इज ऑल्सो देयर। और बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, साइबर अटैक पहले ही निगेटिव आ गए तुम। शशांक एडवांस कम्युनिकेशन टेली का, हाँ टेली मेडिसिन, बहुत बढ़िया, टेली मेडिसिन एब्सोल्युटली राइट, टेली मेडिसिन आ सकता है, बहुत बढ़िया। ई लर्निंग आ सकता है, बहुत बढ़िया, ई लर्निंग है ना, बताऊंगा, जैसे स्वयं है, सारांश है, इस तरह के पोर्टल्स आ सकते हैं। स्वयं पे तो एक बार IAS में भी 2016 में स्वयं स्कीम है। इवन और क्या, हाँ लेट मी सी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, जुड़ जाइए मुझसे। टेली मेडिसिन बहुत बढ़िया, टेली मेडिसिन आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब देखो, आई नो गाइस हियर मेनी पीपल हैव अ प्रॉब्लम, क्या हो सकता है मैं बताता हूँ। सर टेली मेडिसिन क्या होता है, डोंट वरी। सर ई लर्निंग क्या होता है, अच्छा 2 बार हो गया टेली मेडिसिन, कोई बात नहीं। सर ऑप्टिकल फाइबर क्या है, सर DTH तो शायद जानते होगे, और मोबाइल फोन तो यू ऑलरेडी यूजिंग, तभी वो तुम मुझे मैसेज भी भेज रहे हो, ठीक है। अच्छा इसके अलावा अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। एक और फैसिलिटी है, दैट इज ई गवर्नेंस, ठीक है। रहने दो, इतना बहुत है एडवांटेजेस में, बिकॉज हियर 2-3 टर्म्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द डिस्कशन, जो थोड़ा थोड़ा बताना जरूरी है, क्योंकि समबडीज दोज आर लिसनिंग मी, दे स्टिल हैव नॉट द बैकग्राउंड्स, ठीक है, तो उनको थोड़ा बताना पड़ेगा इन ब्रीफ 1 to 2 लाइन्स में। आई विल टेल यू, पहले सुनो एडवांटेजेस में, देन आई विल गो इनटू द डिसएडवांटेजेस। सुनना, mobile phone, I don't think so any need of discussion, okay, you already know, for communication purpose it's a best platform and information communication technology provide you। ऑप्टिकल फाइबर पता है दोस्त, जो घरों में हम लैंडलाइन लगता है ना, जिससे हमारे घर का वाईफाई जुड़ता है, दैट इज द ऑप्टिकल फाइबर, ओके। एंड ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉड अ रिवोल्यूशन इन इंटरनेट स्पीड्स। जो घरों में आपका जो लैंडलाइन आके ऑप्टिकल फाइबर लगता है ना, एयरटेल का आप लेते हो, MTNL का आप लेते हो, BSNL का आप लेते हो, अच्छी स्पीड आप लेते हो, नहीं मैं 100 Mbps स्पीड लूंगा, 200 GB डेटा लूंगा, वो जो आता है ना वायर घर के वाईफाई डिवाइस से दैट कनेक्टेड, दैट इज व्हाट, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू आता है। एंड ऑप्टिकल फाइबर वो है दोस्त, दैट इज एंटायरली स्प्रेड इन द ओशंस, पूरे ओशंस में बिछे हुए हैं, ओके, पूरे ओशंस में ऑप्टिकल फाइबर बिछे हुए हैं, ठीक है। आपको मैं दिखाऊंगा, इंटायरली पूरा ओशन ऑप्टिकल फाइबर से बिछा हुआ है, और 95% ऑफ इंटरनेट सर्विसेज दीज आर रनिंग थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, ओके। ये इंटरनेट खुल जाएगा ना, ओके चलो इनको, ओके रुको यहीं से डालते हैं, इनको दिखाता हूँ, रुक जाओ, इंटरेस्ट लाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये हटाते हैं, इन बच्चों को इंटरेस्ट दिलाना बहुत ज़रूरी है। हाँ खुल गया, अच्छा हाँ ओके सॉरी, यहाँ पे डालना है, क्या डालना है, क्या डालना है, ऑप्टिकल फाइबर है ना, क्या यहाँ टाइप वाला नहीं आ रहा है क्या नीचे, कहाँ है, अच्छा ये कस्टमाइज, ओके, अरे नहीं कहाँ है, हाँ ये कहाँ गया, हाँ आ गया, रुको, OP, अरे रे सुन भाई, OP तो चला जा रहा है शुक्ला जी, कुछ इसमें दिक्कत है, इसके बाद फॉर्मेट देख लेना। देखो चला जा रहा है, रुक जाओ मैं इसी से करता हूँ, तो थोड़ा इंटरेस्ट दिला दो यार, IAS बन जाएंगे सब, IAS PCS। प्रॉब्लम क्या है, पढ़ते हैं सब, इंटरेस्ट ही नहीं आता, क्यों फिर अब वहाँ क्या करेंगे, ओहो अब इनकी किस्मत में नहीं है आज, अरे उस वाले में तो चला जाता था यार, उस वाले क्लास में। ओ आ गया। डिजिटल में ये सब इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, इसका फ़ायदा इन सबों को लेना चाहिए। हो गया ऑप्टिकल फाइबर इन ओशंस, है ना, पिक्चर पे आएंगे, चलो चल भाई, पिक्चर। ये देखो दोस्त मैं दिखाता हूँ, ये देखो, यू सी दिस पिक्चर, ये देखो, कहाँ गया भाई, सब परेशान करते हैं हमको। देखो सीधा टीचर कोई मिल जाए ना तो सब परेशान, स्टूडेंट भी और ये भी सब, है ना, बड़ा करें। अब यार धुंधला हो गया, चलो समझ जाएंगे सर, है ना, समझ जाएंगे ना, हाँ बस समझा नहीं है, ठीक है। देखो दोस्त, देखो है ना, देखो है ना, व्हाट आर हियर, देखो यू सी ऑप्टिकल फाइबर, आप ये सब देखो ऑप्टिकल, सब देखो पूरे ओशन में, देसी भरा हुआ है, देखो ये ऑप्टिकल,
और ये इधर का वायर जोड़ लेना, पता ना पृथ्वी गोल है ना, ये ऐसे कर है ना, ये और ये जोड़े, ये देखो ये पूरा ऑप्टिकल फाइबर, ये पूरी दुनिया ऑप्टिकल फाइबर, ओके ऑप्टिकल फाइबर। अच्छा हाँ, हम कहाँ थे, चलो उधर आते हैं। डिप्टी कलेक्टर तो मैं बना ही दूंगा, ओके चलो इधर आओ, पर तुम लोग अपनी मेहनत करो। ICT ओके, अरे कहाँ थे हम, यहाँ थे, ओके यहाँ थे। So I hope you people clear optical fiber. Its network is totally in the oceans and the same optical fiber also reach to your doorstep guys. Okay fine. सोचो अच्छा DTS facility I don't think so have a need of any discussions. Okay direct to home that satellite से based or television we are using. Dish TV everybody is using, Tata Sky, Airtel बहुत सारे as you people know. Telemedicine is what? See guys, if any other terminology is tele means distant, tele means distant और डिस्टेंट को कहते हैं दूरी से मेडिसिन सुविधाएं जो लेते हो। जानते हो क्या होता है, अर्बन डॉक्टर्स दे नेवर प्रेफर टू गो इन द रूरल एरियाज। सब खाते हैं पर सबको पैसा चाहिए, यू ऑलरेडी नो वेरी वेल द रियलिटी, ठीक है। होता क्या है, बट देयर इज अ वन फैसिलिटी, टेलीमेडिसिन सर्विसेज। अर्बन डॉक्टर डिजिटल प्लेटफॉर्म से, थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ब्रॉडबैंड प्लेटफॉर्म से गाँव के अंदर के बंदे को देख सकते हैं। वहाँ पे एक छोटा सा हॉस्पिटल बना दो, छोटा सा, ओके और वहाँ पे एक कंपाउंडर बैठा दो एंड दैट कंपाउंडर विल इन्फॉर्म यू थ्रू डिजिटल ब्रॉडकास्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यार, एकदम आराम से वो बताएगा, पल्स देके इतना चल रहा है डॉक्टर साहब, है ना, ये इतना चल रहा है, इतनी फीवर से चल रहा है, ओके ठीक है काम करो, यू गो फॉर दिस टेस्टिंग एंड ऑल, उसका रिपोर्ट दो, फिर मैं बताता हूँ, फिर मेडिसिन, सब कुछ थ्रू ब्रॉडबैंड। ये हो गया टेलीमेडिसिन। आई होप नाउ यू अंडरस्टूड। ई लर्निंग, ये क्या हो रहा है अभी जो सुन रहे हो तुम लोग, मुझे जस्ट टेल मी। इट्स अ प्राइवेट बट गवर्नमेंट बेस्ड देखो तो स्वयं प्लेटफॉर्म हो गया। ई लर्निंग मींस व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म वी आर यूजिंग फॉर लर्निंग पर्पसेस। सो दिस इज द ई लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट यू पीपल आर लिसनिंग मी राइट नाउ, फाइन, यहां हो गया। अच्छा टेलीमेडिसिन, ई गवर्नेंस में आई विल डिस्कस विथ यू। आप देखो ना, सरकार आपको सारे इंफॉर्मेशन देती है इंटरनेट पे, गवर्नमेंट के सारे मिनिस्ट्री, सारे डिपार्टमेंट्स के डेटा दे आर ऑफिशियली अवेलेबल। ओके इफ यू गो ऑन गवर्नमेंट पोर्टल, ओके आप वहां जाकर सरकार के सारे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब पहले हम लोग क्या करते थे, अगर एनी काइंड ऑफ फैसिलिटी वी वांट, एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वी वांट, तो वी पीपल गो फॉर आरटीआई करते थे। मोदी साहब क्या करते हैं, नो नीड टू गो फॉर आरटीआई, बेटर यू फर्स्ट गो ऑन द मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंटल साइट्स, वेबसाइट पर जाइए, उस साइट पर जाइए। कैसे जाइएगा, इंटरनेट के थ्रू। एंड गवर्नेंस एज गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। तो गवर्नमेंट आपको सारे इंफॉर्मेशन इंटरनेट के पोर्टल्स पर देती है, ठीक है, सरकारी पोर्टल्स होते हैं, सरकारी इंफॉर्मेशन होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ ई गवर्नेंस। तो छोटा सा मैंने ब्रीफ में बताया, इससे देखो, इससे क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है दैट रीच टू द रूट लेवल, यानी सरकार गांव तक, गरीब तक, किसान तक, हर किसी के लेवल पर इजिली कनेक्ट। ओके ये ई गवर्नेंस का प्लेटफॉर्म है। ई गवर्नेंस आप देखो आपके सिलेबस में प्रीलिम्स में लिखा हुआ है, बात करेंगे, ओके बात करेंगे। CSCs के बारे में बात करेंगे, कॉमन सर्विसेज सेंटर, 1 लाख CSCs आर सेटअप, इट इज मेंशन इन योर प्रीलिम सिलेबस, है ना। ICT, ई गवर्नेंस, इवन आप देखो ना बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म है। आजकल अक्सर सुनते होंगे प्रधानमंत्री का ट्वीट आया, ओके शशि थरूर का ये ट्वीट आया, राहुल गांधी का ये ट्वीट आया। तो ये ट्विटर और ये ट्वीट्स क्या हैं, व्हाट आर दीज आर द सोशल नेटवर्किंग, सोशल प्लेटफॉर्म्स। ओके अब यू पीपल ऑल्सो कनेक्ट विथ मी वेरी इजली थ्रू सोशल प्लेटफॉर्म। आप मेरे फेसबुक पेज पे मुझे पकड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे पकड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे मुझे पकड़ सकते हैं। सो अब नाउ अडेज, इवन पहले जमाने के 20 साल पहले जो बच्चे थे, ओके जिनको मैंने कभी पढ़ाया, दे आर स्टिल कनेक्टेड विथ मी राइट नाउ। 15 साल पहले का बच्चा जो IAS बना है वो मुझे आज कनेक्ट होता है बिकॉज ऑफ फेसबुक, बिकॉज ऑफ अनदर प्लेटफॉर्म्स। तो इट्स व्हाट, वी आर स्टिल कनेक्टेड टुगेदर। सर 15 साल पहले वाला हूँ, ओके फाइन। प्रैक्टो, डेफिनेटली शशांक यू आर राइट, मेडिकल फैसिलिटी थ्रू प्रैक्टो, ओके जो वो एप्लीकेशंस आए हैं। ऑप्टिकल फाइबर मानता हूं मैं, है ना, गवर्नमेंट लेकर आई है, डेफिनेटली राइट, जिसको हम कहते हैं भारत ब्रॉडबैंड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। ओके मुझे एक जगह मत रोको, फाइन। नाउ यू कम ऑन डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ठीक है। those discussion I am doing in the beginning, it is for conceptual clarity। और लास्ट में क्या करूंगा, सबको जोड़कर your answer will complete, that you will write। अभी आप अपने मन से लिखो, जितना भी आप समझ रहे हो इतना लिखना चाहते हो। ओके डिसएडवांटेजेस में अच्छा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कॉमर्शियल पर्पसेस वी कैन यूज, ऑफ कोर्स राइट, बहुत सारे हो गए, यू नो वेरी वेल। ओके
Yeah, what about the disadvantages? So cyber threats are there, definitely guys. साइबर थ्रेट्स तो कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी वाला इशू है, एकदम सही है. सेकेंड वन गाइस, दोज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग, इन दिस केस वी पीपल आर यूजिंग वायरलेस सिस्टम. वायरलेस सिस्टम में वी आर यूजिंग माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स. पता है माइक्रोवेव रेडियो वेव्स इतने खतरनाक हैं, दे आर क्रिएटिंग इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस, दे आर क्रिएटिंग इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस एंड दे इफेक्ट योर बॉडी गाइस. ठीक है, ये सब जैसे रैंसमवेयर का जो केस था 2017 में, okay, ransomware, that was a case. फिलहाल that was a kind of cyber threats, okay, attack on your computer. आप एक कंप्यूटर को बंद कर देता है. वायरसेस वगैरह जो बोलते हैं वो एक तरह का साइबर थ्रेट ही तो है, वायरसेस वगैरह जो है. हाँ, इसका अभी स्टॉकवेयर, स्पाईवेयर, इट्स अ नेम ऑफ. आयुषी, यू डेफिनेटली राइट. बहुत सारी चीज़ें हैं, जैमिंग है, ओके, नेट न्यूट्रलिटी वाला जो इशू है, फाइन, जैमिंग कर सकते हैं, इंटरनेट की स्पीड को हम किसी की स्लो कर सकते हैं, है ना, पैसा लेके किसी को प्रमोट कर सकते हैं, फाइन, ये सब चीज़ें भी होती हैं इंटरनेट पे. तो ये मिसयूज हो गया. तो ऑथेंटिक बंदा जो सच में ऑथेंटिक है उसको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, और जो नॉट जेन्युइन है बट हैव अ मनी तो वो प्रमोट कर ले रहा है. जैसे मुझे कितने लोग जानते हैं, बहुत कम, क्योंकि पैसा खर्च नहीं करता मैं एडवर्टाइजमेंट के लिए. सो दिस इज द वे गाइस. जैसे आप क्या है, आप पैसा खर्च करो ना, आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा. सो दिस इज द प्लेटफॉर्म दैट यू कैन मिस यूज ऑल्सो, ओके, और अपने आप को प्रमोट कर सकते हो. सो दिस इज द वे. आई होप यू पीपल वेरी क्लियर. लैक ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन चलेगा, बट गार्गी इट्स वेरी क्यूट स्टेटमेंट, ओके. लैक ऑफ फेस टू फेस स्टेटमेंट मतलब इंटरेक्शन, इट्स रियली वेरी क्यूट आंसर, वेरी क्यूट आंसर सर, लिटरली सर, बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट. एंड अब हम देखो, हम लोग फेस टू फेस नहीं बैठे हैं. आई अंडरस्टूड, बट इट इज नॉट बच्चा बिकॉज ऑफ इट, ओके, इट इज बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम दैट यू नो. वेरी क्यूट. टुडेज के जितने भी आंसर है सबसे क्यूट वाला है दैट लैक ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन. लिटरली वेरी क्यूट स्टेटमेंट. मैं तो सोच भी नहीं, लिटरली हो गया दोस्त, हो गया. इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ओके, फाइन. अच्छा, now we'll go into the defense. Defense में I will not go for anyone. Defense, I hope you people know very well. One side it is used for security. Second side we can use for destruction purposes on any enemy countries. So advantage and disadvantage both guys. Fine. Okay. Even defense में guys, I can give you some more examples. Like we people also installed वो करते हैं, क्या है, UAVs बनाते हो, UAVs, unmanned aerial vehicles, जिसको कहते हैं ड्रोन्स. दोज वी कैन यूज फॉर स्पाई पर्पस. तो यू कैन सेफ एंड सिक्योर. चलो थोड़ा लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा लिखते हैं, क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल नोट भी कर रहे होंगे, तो बिल्कुल वो चीज़ थोड़ा लिखेंगे, ओके, थोड़ा. सो डिफेंस अगेन यू सी एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. So advantage and disadvantage. So what about the advantage? Okay, advantage is the security of any nation. Security of any nation या protection of any countries. Protection or safety you can say, है ना? Against the enemy nations. Against your enemy. एक तो ये advantage हुआ. दूसरा पता है, there is lot of जैसे हेलीकॉप्टर्स हम बनाते हैं डिफेंस पर्पसेस के लिए. पता चलता है दैट वी पीपल यूज फॉर यूटिलिटी पर्पसेस. यूटिलिटी क्या होता है? सामान पहुंचाना, ओके, सामान पहुंचाना. यूटिलिटी मीन्स सामान पहुंचाना. मान लो कहीं पर बाढ़ आ जाता है, फ्लड आता है, वहां पे यार अब लोग खाना नहीं खा पाएंगे, वहां पे पानी नहीं है पीने का, वो गंदा पानी थोड़ी ना पिएंगे, तो होगा क्या, वहां पे ऊपर से हेलीकॉप्टर से चीजें गिराई जाती हैं, ओके. अब जैसे यूएवीज हैं, यूटिलिटीज के लिए हो सकता है, ठीक है. जैसे कोई काउंटर इंसर्जेंसी है, काउंटर इंसर्जेंसी. अब काउंटर इंसर्जेंसी क्या है? मान लो कहीं पर टेररिस्ट अटैक होता है, तो ठीक है ना, कोई हेलीकॉप्टर्स हम वहां भी यूज कर सकते हैं. समवेयर हैव अ नक्सलाइट एक्टिविटीज. काउंटर इंसर्जेंसी के लिए ऐसी जगहों पे हम सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए जो यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड काउंटर इंसर्जेंसी, ठीक है. अच्छा, तो ये आपको क्या दिख रहा है? दैट इज एडवांटेजेस. इस जगह आपको एडवांटेजेस दिख रहा है. अपार्ट ऑफ डिसएडवांटेजेस की बात करें, व्हाट अबाउट द डिसएडवांटेजेस की बात करें. डिसएडवांटेज में जैसे अभी आ रहा है, अच्छा, एडवांटेज में से एक बड़ा क्यूट सा आंसर आया, वी कैन यूज इट एज अ न्यूक्लियर मेडिसिन. डेफिनेटली राइट गाइस, न्यूक्लियर मेडिसिन. अब न्यूक्लियर मेडिसिन क्या है?
फॉर समबडी एल्स न्यूक्लियर मेडिसिन हैव अ क्वेश्चन, जो पहली बार सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं सबका ख्याल रखता हूँ। देखो न्यूक्लियर मेडिसिन क्या होता है, दोज रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स वी पीपल आर यूजिंग, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ठीक है, वो डिस्ट्रक्टिव वाले हैं। पर लॉट ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो हम कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज करते हैं, जैसे कोबाल्ट आइसोटोप्स इन द केस ऑफ कैंसर थेरेपी, आयोडीन आइसोटोप्स है ना इन द केस ऑफ कैंसर थेरेपी, ये ग्वाइटर वाइटर जो डिजीज होता है, नॉट कैंसर। सो अल्टीमेटली आई एम टेलिंग यू गाइज देयर आर मेनी है ना, मेनी एप्लीकेशंस वी पीपल कैन यूज इट। ओके, इस तरह की चीजों को हम न्यूक्लियर मेडिसिन कहते हैं। अब जैसे कैंसर के केसेस में हम लोग गामा रेडिएशंस भेजते हैं, बॉडी के किसी पार्ट को कैंसर हो जाता है, और गामा रेडिएशंस क्या होता है, एक तरह का रेडिएशंस होता है, और उसको हम कहाँ यूज कर रहे हैं, ट्रीटमेंट्स के लिए यूज कर रहे हैं। और ये चीजें कहाँ से आती है, न्यूक्लियर फ्यूल वगैरह से, इस तरह के रेडियोएक्टिव एलिमेंट से मिलती हैं, एंड वी आर यूजिंग एज अ मेडिसिनल पर्पसेस, और यही हो जाते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन। ओके, सो एब्सोल्युटली राइट आ जाए, ओके यू आर राइट, तो ये भी चीजें होती हैं। ओके, और सुनना डिसएडवांटेजेस क्या है यार, एटम बम बनाओगे तो दैट इज अ डिसएडवांटेजेस ना, एटम बम बनाओगे तो दैट इज अ डिसएडवांटेजेस। एटम बम नॉट ओनली किल अ पीपल टू दिस जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन बर्बाद हो जाता है एटम बम से। आई होप यू विल रिमेंबर इट। सोचो कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक है। और सुनो इन दिस केस, इसके अलावा डिसएडवांटेजेस और क्या दोगे आप, और क्या यू कैन गिव मी इन द केस ऑफ डिसएडवांटेजेस। हाँ, अभी आपने एक आयुष यू मेंशन हियर अबाउट वेरी बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया आपने, यू हैव मेंशन अबाउट गरुण, गरुण का एग्जांपल दिया, ठीक है। डिफेंस में वी कैन यूज द यूएवीज को यूज कर सकते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल वी कैन यूज, अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसमें ह्यूमन नहीं जाता है उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, स्पाई पर्पसेस के लिए। गरुण, आपने एक मूवी देखी होगी उरी, ओके, उसमें गरुण को ही यूज किया था। Okay, I hope everybody has seen that movie. It was very beautiful movie. Okay, fine. अच्छा, so that you can use, but it is the advantageous purposes. Garun, Uri, I think many people have seen it. Okay, atom bomb हुआ, और ठीक है, ठीक है। Actually, you know guys, what happened when an atom bomb drop in the particular areas? थोड़ा मैं बताता हूँ। Just like Vikram has mentioned, unproductive investment, threat to mankind, species loss, आयुष ने लिखा। इसमें होता क्या है? You people are absolutely right. Okay, और देखो कितना अच्छा लग रहा है ना कि हम सब मिलकर क्वेश्चन आंसर निकाल रहे हैं, और exactly I am expecting the same thing. और अच्छा है, पहले दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है, to mix the with you guys. तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा जैसा या तुम्हारी तरह ही सोचता है, तुम्हारी तरह ही पढ़ाता है, ठीक है। सुनो, तुमसे बेटर सोचता है, फाइन, आपको मेरी तरह सोचना है अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन। सब देखो सर हिलाने लगे, हाँ हाँ हाँ, छुट्टे गएंगे, इधर आओ। अच्छा, कम दोस्त, थोड़ा हंसी भी करना जरूरी है ना, द क्लास विल बी लुकिंग लाइक यू नो बहुत ही बायस, ओके, थोड़ा एनर्जी कम हो जाती है। अच्छा, वन थिंग आई जस्ट टोल्ड यू गाइस, व्हेन अ एटम बम ड्रॉप इन द पर्टिकुलर रीजन, तो क्या होता है, व्हेन अ एटम बम ड्रॉप इन द पर्टिकुलर रीजन, तो जो पहला होता है वहां पे हीट बहुत बढ़ जाता है, a lot of heat even generate there, and because of that people die. So the temperature 300, 400, 500, you people will survive on 300, 400, 500? Of course no. But it was just for few duration of time. जब तक उसका यूरेनियम है, उसका फ्यूल है, तब तक वो जलेगा, उससे हीट एनर्जी निकलेगी। It was short period of time, maybe for 2 months, maybe for 6 months, हो गया 4 months, ऐसे हो सकता है। But the second effect, जो वहां पर यूरेनियम बिखर जाता है, okay, that disposed there in their own soil particles and all, वो यूरेनियम, उनसे रेडिएशंस होते हैं, एंड दैट रेडिएशंस होते हैं ना, वो जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन बर्बाद कर देता है। वो खतरनाक है, दैट इज डेंजरस, दैट इज डेंजरस। ओके एवरीबॉडी, दैट इज डेंजरस, फाइन। तो जनरेशन टू जनरेशन कैन बी डिस्ट्रॉय। सो आयुषी 100% राइट। हाँ, रेडियो एक्टिव इफेक्ट्स, यू एब्सोल्युटली राइट, रेडियो एक्टिव इफेक्ट्स, radioactive effects. So in that way guys, I hope you got it, that defense have advantages and disadvantages. So defense have advantages and disadvantages. और कुछ आप सोच सकते हैं, रिच कंट्री शोज पावर एंड सप्रेस्ड स्मॉल कंट्री, ये तो शशांक, ये तो इट्स अ ह्यूमन नेचर है। तुम जब कलेक्टर बन जाओगे तुम भी शो नहीं करोगे यू आर कलेक्टर, तो इट्स अ ह्यूमन नेचर, ओके। सो दिस इज नॉट इवन इस तरह का पॉइंट है जो लिखने लायक है, पर हाँ सोचने में तो लगता है ये बात सही है, ठीक है, ये चीज़ सही है। सो अभी और रुकते हैं, एक मिनट, ओके, जस्ट यू कम हेयर, कहाँ गया, यस यहाँ पे। अच्छा, यू जस्ट लिसन गाइस,
We people have finished today up to here. We people finished up to here. Okay, यहाँ तक. Still have a need of more discussion. अभी 1 घंटे की क्लास और बाकी है मेरे दोस्त. इसमें अभी टाइम लगेगा. At least 1 hour. So this discussion and plus this all the factual data, those you people will write in front of me. ये आपको दिखेगा.